Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, stay happy, stay healthy and stay safe children. Children, this is our English class and we are doing chapter number 8, Jingo and Tingo. So here I am with another video from this chapter, and I hope children that all of you are watching the videos on a regular basis. आप लोग रोज रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो, and this is my sincere advice to all of you that you must watch the videos regularly, okay? Because in the videos we explain everything in a very detailed manner. Whatever the exercises are, जो भी lesson है हम बहुत detailed manner में explain करते हैं. So my suggestion to all of you is to watch the videos regularly. In case of any doubt you have, कोई doubt है, कुछ clarify करना है, कुछ चीज को समझना है, if any work is not complete, कोई आपका छूटा हुआ work है, you can do everything. आप अपना work complete कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो videos में से, okay? So my advice to all of you is to watch the videos regularly. In this lesson we have done the comprehension exercises. In comprehension exercises, the first exercise was to take the correct sentence. ठीक है, read the sentence and take the correct one. मतलब sentence को read करके आगे उसको correct two sentences were given and उसमें से one was correct and one was incorrect. तो correct sentence को हमें उसमें check करना था. Okay, we have done that and then we did question answers. Now today we will be doing grammar exercises, and in grammar we will be doing joining words. Like in different lessons we are learning different parts of speech. किसी lesson में हमने इसके previous lesson में position words पढ़ा, कहीं पे हमने describing words पढ़ा, किसी lesson में हमने action words पढ़े, किसी में हमने naming words पढ़े. So in this lesson we are going to talk about joining words. Joining words or connecting words or linking words. सबका meaning same है, okay? सबका meaning same है, सबका मतलब है जोड़ने वाले words, ठीक है? अभी मैंने ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा डिटेल में पढ़ाया है, उसमें मैंने इसके बारे में बताया है. जॉइनिंग वर्ड्स ऑफ ग्रामर में बोलते हैं कंजंक्शंस. दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन टू words or two sentences. The words like and, but are used to join two words or two sentences. These are known as linking words or joining words. Link करने का मतलब भी है join करना, जोड़ना. Joining का मतलब भी है जोड़ना. Connection, connecting का मतलब भी है जोड़ना. Okay, so all the meaning of all the words means conjunction. Okay. Like यहाँ पे जैसे we are talking about and but, we are talking about and but, ठीक है? These two joining words. अभी ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें हम ये दो joining words की बात करेंगे. अभी अगर हमको ये दोनों joining words को join करना है, so how do I do it? And but, ठीक है? So when we use these words to join two sentences or two words. जैसे हम बोलते हैं mother and father, Meenu and Nitin. We are taking two names. I have two brothers, Raman and Aman. ठीक है? I have two sisters, Tina and Reena. My best friends are Aman and Riya. ठीक है? मेल फीमेल जेंडर की जब हम बात करते हैं, और व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स देयर बेबीज, तो व्हेन बोथ द वर्ड्स, अभी द क्वेश्चन इज एंड बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूज ऑफ दीज टू जॉइनिंग वर्ड्स. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डू वी यूज एंड वेयर डू वी यूज बट. एंड को हम कहाँ यूज करते हैं और बट को कहाँ यूज करते हैं. एंड का मतलब है हिंदी में और, ठीक है? एंड का मतलब है
ठीक है। और बट का मतलब है हिंदी में लेकिन, अगर आप हिंदी में बोलोगे तो और लेकिन, ओके। और जैसे हम बात करते हैं मदर एंड फादर, सिस्टर एंड ब्रदर, किंग एंड क्वीन, हॉर्स एंड मेयर, पीकॉक एंड पीहन, लायन एंड लायनेस। एंड इज यूज्ड इफ वी आर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स। अगर हम एंड को यूज करके टू वर्ड्स ज्वाइन कर रहे हैं तो एंड कहाँ पे यूज होगा? जब दोनों वर्ड्स या दोनों सेंटेंसेस व्हेन दे कन्वे द सेम मीनिंग, दोनों वर्ड्स या दोनों सेंटेंसेस की जब मीनिंग सेम होती है देन वी यूज एंड, ठीक है, तब हम एंड यूज करते हैं। किंग एंड क्वीन मतलब राजा और रानी, मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर भाई बहन, मम्मी पापा, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ठीक है, अंकल एंड आंट, लायन एंड लायनेस, पीकॉक एंड पीहन, कॉक एंड hen. So here we are talking about gender. One is male gender, one is female gender. But we are talking about gender only. Okay, so in that case we are using and. Similarly, when we join two sentences, अगर दोनों sentences same type की meaning कन्वे करते हैं, जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं बार बार देती हूँ कि आई लाइक टू ईट मैंगो, आई लाइक टू ईट पाइनएप्पल, मतलब मुझे मैंगो खाना पसंद है, मुझे पाइनएप्पल खाना पसंद है। व्हेन आई जॉइन दीज टू सेंटेंसेस मैं कैसे लिखूंगी? आई लाइक टू ईट मैंगो एंड पाइनएप्पल, मतलब मुझे मैंगो और पाइनएप्पल खाना पसंद है। हियर बोथ द सेंटेंसेस आर टेलिंग अबाउट माई लाइकिंग फॉर फूड्स, मुझे कौन सा फूड पसंद है उसकी लाइकिंग बता रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगी? एंड, ठीक है। सो एंड इज यूज व्हेन बोथ द वर्ड्स और बोथ द सेंटेंस कन्वे सेम टाइप ऑफ मीनिंग। बट इज यूज्ड व्हेन द टू वर्ड्स आर ऑपोजिट इन मीनिंग, या दोनों का मीनिंग ऑपोजिट है या दोनों का मीनिंग एक दूसरे से अलग है, ठीक है। इन दैट केस वी यूज बट, चाहे वर्ड्स है चाहे सेंटेंसेस है, ठीक है। तो सेंटेंसेस में भी क्या है कि अगर दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग ऑपोजिट है या दोनों सेंटेंसेस टू डिफरेंट आइडियाज बताते हैं देन वी यूज बट। जैसे अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज, किसी ह्यूमन बीइंग की, किसी एनिमल की क्या क्या क्वालिटीज है, तो अगर सेम क्वालिटीज है देन वी यूज एंड। अगर अपोजिट क्वालिटीज है तो हम क्या यूज करेंगे? बट। जैसे फॉर एनी चाइल्ड वी से रीना is very hardworking and a sincere girl. So hardworking and sincere both are positive qualities. So what do we say? Very hardworking and sincere. ठीक है? She is very intelligent and sincere. Intelligent, hardworking and sincere. सारी positive qualities है. But if any child is intelligent तो बहुत है लेकिन lazy है, काम नहीं करना चाहती है वो. She is very intelligent but she is very lazy. इंटेलिजेंट एंड लेजी, दीज आर टू ऑपोजिट क्वालिटीज। इंटेलिजेंट तो है लेकिन लेजी है, तो ऑपोजिट क्वालिटीज हुई, ठीक है। तो उसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या? देन वी विल यूज बट। रिया इज वेरी हार्ड वर्किंग बट लेजी। जैसे लायन है, लायन इज सपोज टू बी वेरी पावरफुल, फेरोशियस, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बिग। सो वी कैन से लायन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फेरोशियस एनिमल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंड फेरोशियस दोनों जो लायन की जो क्वालिटीज होती हैं, वी डू नॉट से पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लायन। लायन इज सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग, लायन इज सपोज टू बी फेरोशियस, मतलब खूंखार जिसको बोलते हैं, ठीक है, देख करके डर लगता है। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लायन। बट इफ लायन को अगर हम बोले कि बहुत फेरोशियस है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है बट लेजी है, लायन इज नॉट सपोज टू बी लेजी, बट अगर लेजी है वो डजंट वांट टू हंट, अगर हंट नहीं करना चाहता है तो वेरी पावरफुल बट वेरी लेजी, तो ये दीज आर अपोजिट क्वालिटीज। देन वी यूज बट। और व्हेन वी टॉक ऑफ ऑपोजिट्स, कोकोनट ट्री इज वेरी टॉल बट बनाना ट्री इज शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है ना। माई फादर इज वेरी टॉल बट माई सिस्टर इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो जब हम ऑपोजिट क्वालिटीज की बात करते हैं देन राम इज अ फैट बॉय बट श्याम इज वेरी थिन,
यहाँ पे फैट एंड थिन। सो व्हेन वी टॉक ऑफ ऑपोजिट्स या जब अपोजिट क्वालिटीज की बात करते हैं या जब दोनों सेंटेंसेस अलग अलग मीनिंग कन्वे करते हैं, इन दैट केस वी यूज बट, तब हम एंड नहीं यूज करते हैं। सो एंड बट, मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब कंजंक्शन पढ़ाया है उसमें मैंने एक और ज्वाइनिंग वर्ड बताया है, दैट इज और को हम कहाँ यूज करते हैं? व्हेन वी टॉक ऑफ अ चॉइस, जब हमें कहीं एक चॉइस बनानी पड़ती है। यू कैन यूज एंड और यू कैन यूज बट, मतलब आप या तो एंड यूज कर सकते हो या आप बट यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज एंड बट एट द सेम टाइम, दोनों नहीं यूज कर सकते, तो एंड या बट में से एक चॉइस करनी है। तो और जिसको हिंदी में कहते हैं या, एंड या बट में से एक वर्ड से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, यू कैन ईट एन आइसक्रीम और यू कैन हैव कोल्ड कॉफी। आइसक्रीम खा सकते हो या कोल्ड कॉफी ले सकते हो, दोनों आप नहीं खा सकते हो। ओके, so जब when we have to make a choice, then we use or. So children, you will have to remember these simple basic rules कि कहाँ पे and use करना है, कहाँ पे but use करना है and कहाँ पे or use करना है। और that is ये हिंदी वाला और नहीं है, और जिसको हिंदी में कहते हैं या, ये या ये। संडे को या तो आप पिकनिक पे जा सकते हैं या मूवी देखने जा सकते हैं, दोनों जगह एक साथ नहीं जा सकते। Okay, we can go for a picnic or we can go to see a movie. Okay, so और यूज करते हैं जब हमें चॉइस करनी होती है। And is used when both the sentences convey the same meaning या सेम क्वालिटीज को बताते हैं। And but is used when both the sentences convey opposite meanings or when we talk of opposite. Okay, so I hope this is clear now, children. Now let us start the exercises. First is, now see on page number 81, पेज नंबर 81 पे आप देखोगे कि मीट मीनू एंड नितिन। ठीक है, मीनू एंड नितिन, मीनू और नितिन से मिलेंगे। मीनू इज वेयरिंग अ रेड फ्रॉक एंड ब्लू शूज। ठीक है, तो अगर हम मीनू की ड्रेस की बात कर रहे हैं तो मीनू इज वेयरिंग अ रेड फ्रॉक एंड ब्लू शूज। नितिन इज वेयरिंग येलो टी शर्ट एंड ग्रीन शॉर्ट्स। ठीक है, तो उसकी हम बात करें अलग अलग, तो दोनों में हमने एंड यूज किया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट देयर क्लॉथ्स, देयर ड्रेस। व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टू, मीनू हैज लॉन्ग हेयर बट नितिन हैज शॉर्ट हेयर, मतलब मीनू के बाल लंबे हैं लेकिन नितिन के बाल छोटे हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑपोजिट्स की हमने बात की, तो मीनू हैज लॉन्ग हेयर बट नितिन हैज शॉर्ट हेयर। ओके, now complete these sentences using complete, C-O-M-P-L-E-T-E, complete the sentences using and or but। ठीक है, and or but। First is, I like cake dash। First I will write all the sentences children, okay? C-R-E-A-M-S, पहले मैं सारे sentences लिखूंगी। Okay, 5 sentences are there। My G-R-A-N-D grandma is old dash H-E-A-L-T-H-Y, healthy। Okay, the next is Nida dash I play on the swings, play on the swings, S-W-I-N-G-S, play on the swings। Okay, then fourth is, I like to swim dash my friends like to
left that I will do later. I like cake dash ice cream. मुझे केक आइसक्रीम. इस सेंटेंस में क्या है? लाइकिंग बता रहे हैं, ठीक है. I like cake and यहाँ पे क्या होगा? And because it tells us about my liking. अगर ये इसको अगर हम ब्रेक करेंगे सिंगल सेंटेंस से, I like cake and ice cream. ठीक है. इफ आई ब्रेक दिस वन सेंटेंस इन टू सेंटेंसेस, अगर इसको मैं टू सेंटेंसेस में ब्रेक करती हूँ तो क्या होगा? आई लाइक केक, आई लाइक आइसक्रीम्स. तो यहाँ पे क्या है? बोथ द सेंटेंसेस आर टेलिंग अबाउट माई लाइकिंग फॉर समथिंग. मेरी किसी खाने की चीज के लिए मेरी क्या लाइकिंग है वो बता रहे हैं. तो आई लाइक केक, आई लाइक आइसक्रीम. व्हेन वी जॉइन दीज टू सेंटेंसेस, आई लाइक केक एंड आइसक्रीम. ठीक है, मुझे केक और आइसक्रीम पसंद है. सेकेंड इज माई ग्रैंडमा इज ओल्ड हेल्दी. अभी इसको मैं पहले टू सेंटेंसेस में ब्रेक करती हूँ. ओके, माई ग्रैंडमा इज ओल्ड, माई ग्रैंडमा इज हेल्दी. नॉर्मली ओल्ड के साथ हम क्या अज्यूम करते हैं कि अगर कोई पर्सन ओल्ड हो गया है तो दैट पर्सन बिकम्स वीक. ओल्ड एज की जैसे जैसे एज बढ़ती है वीकनेस भी बढ़ती है, क्योंकि हमारी जैसे बोन्स है थोड़ी वीक होती जाती हैं. जितनी पहले हेल्दी थी उतनी हेल्दी नहीं रह जाती है. ठीक है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी जो है थोड़े धीरे धीरे वीक होने लगते हैं. तो ओल्ड एज के साथ हम नॉर्मली वीकनेस को एसोसिएट करते हैं. माई ग्रैंडमा इज ओल्ड, माई ग्रैंडमा इज हेल्दी. सो ओल्ड एंड हेल्दी थोड़े अपोजिट चीजें हैं, अपोजिट क्वालिटीज हैं. तो व्हेन वी जॉइन दीज टू सेंटेंसेस, माई ग्रैंडमा इज ओल्ड बट, मेरी दादी जी, मेरी ग्रैंडमदर बूढ़ी है लेकिन हेल्दी है. वाई? बट बिकॉज नॉर्मली विथ ओल्ड एज वी एसोसिएट वीकनेस, कि ओल्ड कोई हो गया है तो वीक हो गया होगा. बट यहाँ पे ओल्ड एंड हेल्दी दो अपोजिट चीजें हैं. तो माई ग्रैंडमा इज ओल्ड बट हेल्दी. ओके. थर्ड इज निदा डैश आई प्ले ऑन द स्विंग्स. निदा और मैं, निदा एंड आई. यहाँ पे मेरी फ्रेंड, whenever like we talk about our friend and myself, जैसे हम अपने बारे में और अपने फ्रेंड के बारे में बात करते हैं तो हमेशा फ्रेंड का नाम पहले लिखते हैं. माई फ्रेंड एंड आई, निदा एंड आई, मतलब निदा और मैं. निदा प्ले ऑन द स्विंग्स, आई प्ले ऑन द स्विंग्स. ठीक है, निदा स्विंग्स पे खेलती है, निदा प्लेज ऑन द स्विंग्स, आई प्ले ऑन द स्विंग्स. सो व्हेन आई जॉइन द टू सेंटेंसेस, निदा एंड आई, निदा एंड आई play on the swings. Okay. Then fourth is I like to swim, my friends like to skate. अगर ये दो sentences पहले मैं break कर दूँ, I like to swim और second sentence है my friends like to skate. यहाँ पे दो opposite game, मतलब दो different games है. जिससे मैंने बताया था कि but is used for opposites or when both the sentences convey different ideas. मतलब difference of opinion है, different ideas है. यहाँ पे मुझे तो स्विमिंग पसंद है, आई लाइक टू स्विम. माई फ्रेंड्स लाइक टू स्केट, मेरे फ्रेंड्स को स्केटिंग पसंद है. तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया कि मुझे स्विमिंग पसंद है, मेरे फ्रेंड्स को स्केटिंग पसंद है. तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो आई लाइक टू स्विम बट माई फ्रेंड्स लाइक टू स्केट. ओके. नाउ फिफ्थ वन इज, children, first one I am going to the first and second one. I'm sure you have done it, this. Okay. Now fifth is fourth, sorry. Fourth is fifth. 5 vowels. Fifth is 5 vowels dash 21 consonants together. 5 vowels and 5 vowels, 21 consonants together make 26 letters letters of English ALPHABET. English alphabet. Okay? A is capital. 5 vowels. यहाँ पे क्या होगा?
5 वॉवल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कि 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज बोथ आर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स बोथ आर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो 5 वॉवल्स and 21 consonants together make 26 letters of English alphabet. Okay? So I hope children you have understood the use of and but. आपको and और but का use समझ में आ गया है, ठीक है? Now let us start with the next exercise. Turn to page number 82. This is word building. This was grammar. Now next is word building. Next is word building. Word B-U-I-L-D-I-N-G. Word building, as I told you, word building एक्सरसाइज का एम क्या है, इज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, मतलब आपकी वोकैबुलरी, आपके शब्दकोश को और बढ़ाना। जैसे जैसे आप नए वर्ड सीखोगे, नए वर्ड्स बनाओगे, आपकी वोकैबुलरी और इम्प्रूव होगी। ओके, नाउ सी द फॉलोइंग वर्ड्स। TALK टॉक प्लस ING, क्या बना? टॉकिंग, TALK ING। SLEEP प्लस ING, it becomes sleeping. RUN plus N plus ING, that is RUNNING, running. SIT plus T plus ING, that is SITTING, sitting. ठीक है? Now where do we add ING? जब action, you can see that all these are action words. Talk, sleep, run, sit, all these are action words. अभी इनमें हम ING कब ऐड करते हैं? When do we add ING with these words? We can add ING to some words, while in some words we need to repeat the last letter of the word before adding ING to them. ING हम ऐड करते हैं जब हम अभी कंटिन्यूअस, लगातार कोई काम हो रहा है, उसके लिए जब हम बात करते हैं, then we use ING with the verb. Like I am teaching to you, I am teaching you. You are watching the video. You are listening to me. मतलब जो काम आप अभी कर रहे हो, whatever you are doing right now, जो continuous अभी हो रहा है, जब हम उस काम की बात करते हैं, then we use ING, then we add ING with the verb. Okay? अभी आप और जब सीनियर क्लासेस में जाओगे, तब आप ग्रामर जब और थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, then you will learn about the use of ING. Okay? So where do we add? Now you must have noticed like talking and sleeping. TALK plus ING हमने सिंपली ऐड कर दिया, एंड स्लीप में भी हमने सिंपली ING ऐड कर दिया। बट विथ रनिंग एंड सिटिंग हमने लास्ट वाला जो लेटर है उसको हमने रिपीट किया। जैसे रन में लास्ट लेटर इज N, so before adding ING I have repeated N, RUNNING. Similarly in sitting में भी हमने SIT ING ऐड करने से पहले जो लास्ट लेटर है T, वो हमने रिपीट किया। ओके, SITTING. Now here is a fun exercise. Some words are given below. Place them in the correct box according to their spelling rules. Now these are, जिस English में मैंने बताया है, there are some rules. So this is also one of the rules. ऐसा भी नहीं है कुछ इसमें हमको ING सिंपली ऐड करना है, या किस वर्ड में लास्ट लेटर को रिपीट करके फिर ING ऐड करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो ये 2 बॉक्सेस में उनकी स्पेलिंग के रूल के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स को लिखना है, ठीक है? नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट द वर्ड्स बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ स्पेस। लाइक फर्स्ट देयर आर 2 कॉलम्स, फर्स्ट में क्या है? TALKING. दैट मीन्स हियर वी आर सिंपली एडिंग, इस कॉलम में जो हम वर्ड्स लिखेंगे उसमें जिस वर्ड्स में हम सिंपली ING ऐड करते हैं, एंड इस कॉलम में हम वर्ड्स लिखेंगे वेयर वी आर रिपीटिंग द लास्ट लेटर, SIT फिर एक T रिपीट हुआ। ओके, तो इस कॉलम में जिन वर्ड्स में हम लास्ट लेटर को रिपीट कर रहे हैं वो वाले वर्ड्स लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट लाइक स्विमिंग,
given in the box is swimming. S-W-I-M-M-I-N-G. So here we are repeating the last letter. The spelling of swim is S-W-I-M. But before adding I-N-G, we are adding one more M. इसको हम इस कॉलम में लिखेंगे S-W-I-M-M-I-N-G. Swimming. Second word is talking. Talking is already written here. Third word is going. G-O, go, plus we have just added I-N-G. तो यहाँ पे हम G-O-I-N-G. Going. Okay? Next word is eating. E-A-T, eat, plus I-N-G. We have simply added I-N-G. So E-A-T-I-N-G. Eating. Then putting. It is P-U-T-T-I-N-G. The spelling of put is P-U-T. यहाँ पे हमने P-U-T-T. ठीक है, हमने एक T और ऐड कर दिया. So this becomes P-U-T-T. So we will write this in second column. Then looking. L-O-O-K-I-N-G. Here we have simply added I-N-G. So L-O-O-K-I-N-G. Looking. ठीक है. Looking के बाद next word is getting. G-E-T-T-I-N-G. Spelling of get is G-E-T. उसमें हमने एक T और ऐड किया है. Before adding I-N-G, G-E-T-T-I-N-G. So therefore we will write it in this column. Then stopping. Here also it is double P. The spelling of stop is S-T-O-P. But before adding I-N-G, we have repeated P. S-T-O-P-P-I-N-G. Stopping. Okay? Then singing. S-I-N-G-I-N-G. Spelling of sing is S-I-N-G. We have simply added I-N-G. S-I-N-G-I-N-g. This is singing. Now next word is running. The spelling of run is R-U-N, and here we have repeated N. R-U-N-N. So we will write it here. R-U-N-N-I-N-G. Running. Okay? Then sitting. The spelling of sit is S-I-T, but before adding I-N-G, we have added one more T. S-I-T-T. S-I-T-T-I-N-G. Sitting. Okay? The last word is falling. Falling means गिरना. The spelling of fall is F-A-L-L. And here we have simply added I-N-G without repeating. L-P-P-U-Y. The spelling of fall is F-A-L-L only. So it will be written in the first column. F-A-L-L-I-N-G. Okay? Okay children? So you have to remember this basic rule. In which before adding ing, जैसे मैंने ये तो बता दिया, although it is not given in your book, but मैंने बताया कि where do we use ing. ing हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस कंडीशन में ing यूज करते हैं. Okay, so ing is used children when we talk of something which is going on right now. कोई काम अगर अभी continuously चल रहा है, then in that case उसमें तब हम all these are action words. Talk, go, eat, look, sing, fall, sit, swim, put, get, stop, run, sit. All these are action words. Okay? Sitting already it was written here. So when we add ing, मतलब जब कोई काम अभी लगातार चल रहा है, we are playing, हम खेल रहे हैं. We are going for a movie, हम अभी मूवी जा रहे हैं. तो ing with some words we simply add ing, and with some words we repeat the last letter of the word before adding ing. जैसे sit, sit, तो sit में हमने एक t और repeat किया. Swim, swim, we have added one more m. Okay? P-U-T-T-I-N-G. The spelling of put is P-U-T. Before adding ing, we have repeated t. Getting, spelling of get is G-E-T. Before adding ing, we repeated the last letter which is T. Then stopping. Spelling of stopping is S-T-O-P, and before adding ing, I have repeated P. And running. The spelling of run is R-U-N, and before adding ing, I have repeated the last letter, that is N. Okay? So I hope children this is
clear to you now? Now in the next class we will be doing listen and say aloud. So that is all for the day, children. Thank you.